Hello, hello. So ladies and gentlemen, get ready for the clash of the titans. One of the best teams facing off against the other best team. The best versus best are facing off against each other, and it will be an encounter to watch for. A lot of big names here in this match. The toss was won by the team captain of Sujit Strikers Mormugao, Sarfaraz Nawaz, and he has elected to field first, and they have kept an invitation to their opponents to bat first. Recently, the match that we witnessed in Kanka, that was the Bhumika 11 Kanka tournament. The match that was won by the dominating Isha Adventures Vasco. The players from that team can be seen here alongside one of the all-rounded teams here in Goa, the team of Sakwar. The players can be seen representing their taluka, and it will be a big fight. And let's see which team will make it through towards the victorious edge, because it's a do-or-die match. It's a knockout stage, and it's look like Vinod Wilson will bring the first over. Abhishek on strike, and to accompany him on the non-strikers end, Praveen Naik. Abhishek in the very first ball, and the fielder righty comes from the extra cover to stop the ball and make sure that the batters don't take a quick single there. The first over, which is the compulsory power play, two fielders can be seen guarding the boundary lines. This time ball goes high, miles high, sky high, and the ball goes all the way for a maximum. Right into the slot, right in front of the arc, and the next moment it goes out of the park. DJ. क्या हुआ है? Yet again, he is smashing the ball really hard. If you want to know what does the phrase mean, the batter coming set right from the pavilion, this is exactly what it means. The ball appears like a football here in the initial stages of the match. And the carnage is being finally displayed by the batter Abhishek. A southpaw left-handed batter, and the two balls being bowled by Vinod Wilson, and they are rightfully into his arc, and the next moment he smashes them out of the park. Brilliant display of aggression. The aggressive batting will be essential, and the reason is fair and square, because the opponents have some aggressive players that can be seen. We can see Syed Badi, Riyaz Khan, Sarfaraz Nawaz at one end. So a big total will be essential, because the opponents possess such kind of power-packed hitting. But on the other hand, Abhishek, the responsibility is being contributed. This time at the offside, pierces the gap, fielder will try hard, but I think no use of that. The fielder can try hard all that he can, but in the end the ball is the one to win the race. Towards the offside this time, scorecard moves on to 16 runs on the scorecard. First delivery in form of a dot, and then he forgets what is called mercy this time. Abhishek on strike.
And this time will he take for it, and completely denied there by the batter Praveen. And this time some sort of sigh of relief here for Vinod Wilson this time, as he's been contributing with a dot delivery. But still, I think the job of the first over that was being given to Abhishek, he has did it, but still in form of a bonus, there is a ball remaining. This time he cuts it through, misfield by the fielder in the deep, and first one taken easily. And he fumbles a bit, Abhishek, but still he will make it through, safe and sound into his home. And after this, we are witnessing the first over has been completed. A bit of an expensive over here, because he is contributing 18 runs from his bat, Abhishek, and on the other hand, conceding 18 runs from the very first over is Vinod Wilson in the power play. So let's see how can the team of Surya Strikers Mormugao compensate with the loss in the first over. Until then, let's hear a melody from our DJ. The responsibility to control the second over from the road end. Very first delivery, he beats the batter completely. Doesn't matter even though if he beats him, but still they are managing a single from there, a quick single. And with that, scorecard will move on towards 19 runs. And now Abhishek yet again on strike. The question is, will Abhishek try to hit some big shots from this end? Because this is not an end of rightfully for lefty batter. But still, some batters are of a kind, they don't see where the wind is, they only see where the fence is. That's a brilliantly executed Yorker there. A toe-crushing Yorker right into the roots of the batter. And yes, he is being applauded by the fellow teammates, because they know such kind of bowling can win them matches. Such kind of bowling can do wonders in the match. Two consecutive dot deliveries, one in form of extra. Scorecard stays still on 19. (19 runs on the scorecard. Abhishek this time proving to be a bit harmful here in the very first over, and this time he's being silenced. Trying to go big, trying to hook the ball at the leg side. The fielder present in the square leg region will stop it. Yet again a single. This is exactly what the captain will expect. If the first bowler has conceded a total number of 19 runs, then surely the coming bowler must compensate with the loss that is being done in the very first over. And surely until now, Vishal is doing his job beautifully. He's doing his work exquisitely till now by not giving any chance to both the batters to hit those big shots. Yet again in the roads. This is exactly what the captain would have expected. And again, he's troubling both the batters. Abhishek at one end, he is successful taking a one big shot, one boundary. But on the other hand, Praveen is completely silenced. Praveen also a batter of high caliber. A batter that possesses massive strength of hitting those big shots. Will he go for it? And this time a submarine delivery. It will be a dream beginning in this tournament for Vishal. Finding hard to describe the work, finding hard the words to describe the job that he's doing so far. Who would have ever thought that the first over that went for 18, and in the second over, in the 5 balls, only 2 runs conceded, completely dismantling the momentum. Yet again, how's that is the call, and yes, up goes the finger. A pinch of salt in the wounds of Ganpati Warriors Fonda,
and they are losing their crucial man this time. Scoreboard stays still on 20 runs, and the first man goes down. What a brilliant over. First ball in form of Bice, a single, dot, single, then consecutive dots, and in the last ball he hits the bullseye. Wicketkeeper takes a brilliant catch behind the wicket. Syed Bali makes no mistake, and 20 runs so far, and losing the first man. नवीन गोलंदाज सतीश होईल सज्ज फार एंड कडून गोलंदाजी करण्यासाठी. अभिषेक आता अगदी अभिषेक साठी एक चांगली संधी आहे मोठे फटके मारण्यासाठी. मोठा फटका तर प्रयत्न केलाय झेल खाली दीपक पात्राव आणि एक सेफ म्हणून तो संबोधला जातो, आणि तो का संबोधला जातो हे तो सिद्ध करून दाखवतोय. सरळ सेफ हँड्स मध्ये दीपक पात्रावच्या मिड विकेटच्या हाती एक सुंदर झेल. Wicket number 2 goes back to the pavilion. DJ. And now the man who took Usgaon cricket to new heights. Anand Patil makes his way towards the pitch in the middle. Chandan Naik and Anand Patil, the two pillars of this team of Ganpati Warriors Fonda, will they take the responsibility? But on the other hand, the bowler, the big blow in the previous over that was being sent back by the bowler, that was Vishal, and now Satish is capitalizing on the momentum that he has provided. Till now, Sarfaraz Nawaz is yet to come on the bowling mark. That means they have ample of bowlers by their side, the Mormugao side. Anand Patil comes, and will he go? And right in the very next moment, as I said, Sarfaraz is yet to come on the bowling mark, but he will contribute with the field, and he makes no mistake while judging the ball and taking a catch. It's a team hat-trick for Mormugao. Will it be a wicket hat-trick for Satish this time? Scorecard stays still on just 20 runs, and third man goes down. TJ. The team is in complete trouble. Wickets are falling like house of cards, like leaves falling from trees. New batter Pranal Sawant. As I said, Anand Patil had a big responsibility this time, but he fails to conquer it. On a possible hat-trick. And this time again a brilliant bowling so far. This is what you call comeback. This is how you get your revenge. Vinod Wilson was a bit expensive in the previous over, in the first over, 80 runs from it, and then just a single in the previous one,
and they are stopped on 20 completely, and on account of that they are losing a total number of 3 wickets. This time hits the ball rapidly as it goes towards the region. It goes downtown where Sarfaraz will field the ball safely. And yes, only a single. Deepak Padrao can be seen on the screen. Surely a brilliant catch by him in the previous delivery. A good pair of hands. A lot of brilliant fielders there, and behind the wickets, Syed Badi, the big man, taking the responsibility. And he's doing it brilliantly so far. Also took a brilliant catch behind the wickets to send back Praveen in the second over. Chandan Naik on strike. This time he goes big. Is it enough? Yes, it is. The confidence, the walk says it all. And finally, the silence is being broken. The track, the train of Fonda that was derailed on just 20 run station finally grabs the next spot with the 6, and scorecard moves on to 27. Field toss ball, fielder present, only a mere spectator will watch the ball sail over his head, and it goes all the way for a maximum. This is what you call cricket. Doesn't matter how many wickets you lose, each and every batter will contribute for his team. If one over goes by you, if one good ball is for the fielding side, the next one will surely come for the batting one. So the contribution from Chandan Naik as he comes, scorecard moves on to a triple Nelson, 33, 3/3 after completion of 3. That's the team of Joy Bodgeshwar Bicholim has qualified. Which team will join them? The race is on for that second spot from day 1 of this tournament. नवीन गोलंदाज लोकेश होतोय सज्ज. एक सिंगल घेतली जाईल आणि अर्थातच त्याने योग्य ते काम केलंय, कारण लेग बाय स्वरूपात एक सिंगल कन्सीड केली आहे. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 34. 34 धावांवर चंदन नाईक जबाबदारी घेतली आहे, आणि त्याचबरोबर या स्क्वॉड मध्ये एक असा खेळाडू ज्याची चर्चा फक्त गोवा राज्यात नाही तर सिंधुदुर्गात सुद्धा इकडे गाजते, आणि का दुसरं नक्कीच कारण सांगेन. वेगळा फटका, ball goes high, ball goes big and it goes far away. 6 धावांसाठी लोकेश्वर केला जातोय अटॅक ओपन चंदन नाईक करवी. मोहित गावकर नक्कीच पायामध्ये इंजुरी असून सुद्धा फायनलच्या मॅच मध्ये आपल्या संघाला विजयशी संपादन करून दिलं होतं. असा सुद्धा एक चांगला खेळाडू, एक उत्कृष्ट खेळाडू या स्क्वॉड मध्ये. आणि त्याचबरोबर गेंद अंदर, दंडी बाहेर, हिट्स द बुलसाय, हिट्स द टार्गेट क्लीनली. जो फलंदाज अर्थ म्हणून समोर येत होता चंदन नाईक, जो फलंदाज अतिशय महारथ होता समोरच्या संघाला, ते मोठं अडसर क्लिअर केलं जात आहे. चंदन नाईक इज बिंग सेंट बॅक टू द पवेलियन. सांघिक धावसंख्या ही 40 असताना गडी क्रमांक 4 हा तंबूच्या आसऱ्याला.
पण खेळाडू वृत्ती हा एक असा शब्द आहे जो आपण बऱ्याच वेळा पुस्तकात पाहतो, बऱ्याच वेळा आपण कोणाच्या तोंडून ऐकतो, आपण बऱ्याच वेळा शब्द बोलतो, पण ते काय असतं इकडे आता मोहित गावकरने दाखवलंय. पायामध्ये इजा आहे पण तरी सुद्धा ती इजा कारण होऊ नये आपल्या संघाच्या पराभवाचं हा मात्र दृढ निश्चय घेत तो उतरलाय. आणि पाहावं लागेल पुन्हा एकदा तेच करून दाखवेल का. पहिल्याच बॉलवर वाईटचा इशारा येतोय पंचांकडे, पंचांकडे पहिलं जातंय. सय्यद बद्दी सांगतोय की कुठला तरी आवाज आला होता पण पंचांकडे अपील फेटाळून लावली जाते. सावर्डेच्या ग्राउंडवर जी किमया करून दाखवली होती तेच कार्य पुन्हा एकदा करायचंय. आणि यस, ऍज आय वॉज सेइंग, शेर भले ही जखमी हो शिकार करणं नाही भूलता. खेळाडू वृत्ती दाखवली, जखमी असून सुद्धा मध्ये पावलं टाकली आणि मोहित आपलं काम सुरू केलंय. षटकाच्या सहाय्याने धावसंख्या परावर्तित 47 धावांवर. स्टार बॉयजची ती स्पर्धा कोण विसरेल. फक्त गोवा राज्यच नाही तर सिंधुदुर्गच्या प्रत्येक क्रिकेट प्रेमीच्या हृदयामध्ये आपलं नाव हे अमर करणारा मोहित गावकर आज मात्र आपल्या घरच्या तालुका संघाकडून खेळत असताना जखमी आहे पण तरी सुद्धा आपला आत्मविश्वास न दळमळता इकडे संघासाठी योगदान. पुन्हा एकदा डाऊन द ग्राउंड, चेंडूची दिशा चालली आहे ती लॉंग ऑफला. एक सिंगल घेतली जाईल आणि सिंगल निशी धावसंख्या परावर्तित 48 धावांवर. एका चेंडूचा खेळ बाकी अजूनही या ओव्हर मध्ये. स्ट्राईक साइडवर प्रणल सावंत फलंदाज सज्ज. यावेळेस ऑफ साइडला एक फटका पाण्यात येतोय आणि इकडे प्रणलने नकारली आहे ती धाव. माहिती आहे की इकडे मोहितचं स्ट्राईक असणं अतिशय महत्त्वाचं, त्यामुळे एक चेंडू निर्धाव गेला फरक पडत नाही. शेवटच्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर मोहित स्ट्राईकवर असणं हे अतिशय महत्त्वाचं. धावसंख्या झाली आहे ती 48 धावा आणि गडी गमावले ते 4 अद्यापर्यंत. जमली जोडी ही प्रणल आणि मोहितची. डीजे पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका and it goes all the way. रिप्ले नक्कीच पाहण्यासारखे असेल. 50 धावाच्या अग्रीनंतर एक मोठा फटका 6 धावा देऊन जातोय. ज्या प्रकारे बॉल आला अगदी त्या प्रकारे एक आगळा वेगळा फटका, जणू काय बॉलला स्मॅश केलं. 6 धावांसाठी 6 धावांची धावसंख्या प्रवर्तित केली जाते ती 56 धावांवर.
रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता एक क्रॉस बॅटेड शॉट. बॉल ज्या स्पीडने आला लागली त्या स्पीडने त्याला पाठवलं. 6 धावांसाठी टेनिस क्रिकेट च्या माध्यमातून आपण हा शॉट पुन्हा पुन्हा पाहू शकता. आणि याचबरोबर पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. नक्कीच फलंदाज जरी जखमी असला तरी सुद्धा इकडे अर्थातच आपल्या संघासाठी खेळण्याची जिद्द सोडायला तयार नाही. धावसंख्या झाली येथे 56 धावा 56. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळा बाकी. यॉर्कर लेंथवरचा चेंडू आणि त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळेल आणि एकेरी धावेवर समाधानी. यावेळेस सुंदर फटका पुन्हा सावंत यू ब्युटी. ज्या प्रकारे बॉल आला लागली त्याच प्रकारे बॉलने इकडे पुल केलं आणि शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका लगावला. स्कोर कार्ड जर पाहिलं तर पोचतंय 63 धावांवर म्हणजे 64 टू विन. 64 असेल टार्गेट हा सामना जिंकण्यासाठी. सुजीत स्ट्रायकर्स मर्मगोवा या संघाला पाहायचंय टार्गेट चेज होईल की नाही, पाहायचंय हे टार्गेट डिफेंड होईल की नाही, कुठच्या बाजूने हा जाईल हा सामना. कारण आपण पाहतोय गोवाज बेस्ट वर्सेस बेस्ट क्लॅश ऑफ द टायटन्स. आणि प्रथम तडक असताना ही या मॅच या पहिल्या इनिंगची समरी. अभिषेक आणि प्रवीण सलामीची जोडी चांगली स्टार्ट प्रदान केली अभिषेकने आपल्या संघाला. 2 मोठे फटके, 1 चौकार, टोटल कंट्रीब्युशन 19 धावांचं. प्रवीण थोडासा लवकर बाद झाला. चंदन नाईक 4 चेंडू खेळला आणि 3 मोठे फटके मारले. 18 धावा त्याच्या बॅट मधून. आनंद पाटील जास्त काही करू शकले नाही व त्यानंतर प्रांजल आणि मोहित ही जोडी इंजर्ड असूनही 15 धावा आपल्या संघासाठी कंट्रीब्यूट केला, योगदान दिलं. मात्र 6 चेंडू 2 मोठ्या फटक्यांच्या सहाय्याने आणि त्याचबरोबर प्रांजलच्या बॅटमधनं 8 धावा. आणि बॉलिंग मध्ये थोडस महाग ठरले विनोद विल्सन. पहिल्या ओव्हर मध्ये 18 धावा विकेटलेस. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये मर्मगोवा संघाला पुन्हा एकदा बॅक इन द गेम आणलं. विशालने 1 धावा खर्च करत 1 विकेट. सतीशचं एक संमिश्र संतुलित षटक, 13 धावा आणि 2 विकेट. लोकेशचं षटक 15 धावांचं ज्यामध्ये 1 विकेट. आणि अंतिमच्या ओव्हर मध्ये बसवराजला लगावले गेले 14 धावा. आणि त्याचबरोबर हे आहे समीकरण. 30 चेंडूंचा खेळ असेल मर्मगोवा संघाच्या बाजूने आणि व त्या 30 चेंडू त्यांना काढायचे आहेत त्या 64 धावा. ॲड ओव्हर टू कृष्णा देवजी. मर्मगोवा संघ विनंती आपण कृपया लवकर बॅटिंगला उतरायचंय. देखिए समय शाम का हो चुका है तो आप इसके बाद 2 मुकाबले बचे हैं तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करें आपसे कि आप बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी पहुंचे.
रखा है आपने, बिल्कुल वाजिब बात। और वापसी किस तरह की मैदान पर हमेशा, ओ सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। छह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, कट किया, पॉइंट पर हवा में रखा। ओ खूबसूरत खूबसूरत मॉल वहां पर, क्या क्या चलपका मैदान में, पल भर के लगा ये गेंद ऊपर से खेल दी उन्होंने, हवा में रखा था, टाइमिंग उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा ग्राउंड की फील्डिंग, बिल्कुल 2 बार पटकी हुई गेंदों पर बिल्कुल फंस गए, उसके बाद शरीर का इस्तेमाल, कंधे का इस्तेमाल, और क्या, और ऑप्शन के बाहर रखा, कट मारने का प्रयास किया और सीधी गेंद निकली हाथ में, पहला विकेट निकला। 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 4 रन पर। इस बार गति है इनके पास, अच्छी गति, बिल्कुल अच्छी लाइन मैदान पर, खासकर इतने बड़े बद्दी जैसे खिलाड़ी को सामने से रोक के रखा, हाथ खोलने का उतना मौका नहीं मिला, एक शॉट जरूर निकला, लेकिन उसके बाद वो उनका विकेट भी ले गए मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन आफ्टर के बाद, वेल डन बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी, सिर्फ 6 रन का यह ओवर निकला पावर प्ले का, एक बड़ी विकेट भी निकली मैदान पर, मतलब अंतिम खेल बचा हुआ 24 गेंदों का, ये 5 ओवर का मुकाबला मैदान पर, और जीत से पीछे यहां से 58 रन अभी तक जीत से पीछे, विकेट टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 6 रन पर। गणपति वाली टीम ने लगभग 63 बने, 64 रनों का सवाल रखा, उसके सामने पीछा कर रही मैदान पर मार्म गोवा टीम मैदान पर। स्ट्राइकर जो कि, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली मोर्चे पर कौन रहेगा बॉलिंग एंड पर, आमिर ना, आमिर आमिर बने तो आमिर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, अनुभवी खिलाड़ी है गेंदबाजी में, सामने सरफराज। ओह ओह क्या बॉल था ये, बिल्कुल बिल्कुल चारों खाने चित मैदान पर सरफराज को। कौन है, कौन कौन कौन, वापस खेल 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वालों को 2000 का इनाम मिलेगा। ओ इस बार पहला शॉट, गेंद को उड़ाया, सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए।
निकला मैदान पर, सरफराज के बल्ले से निकला वो बड़ा शॉट मैदान पर, सीमा रेखा से पार। देखिए आमने सामने की बड़ी टीमों के साथ लड़ाई मैदान पर, ये 64 नहीं, ये लगभग 100 का आंकड़ा है और दोनों टीमें जानती है मैदान पर कि मुकाबले की ताकत क्या है मैदान में। फिर से फुल टॉस के कट किया, पॉइंट का खिलाड़ी पीछे रखा, पहला रन बहुत तेज निकला और शायद देखिए जल्दबाजी वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या वहां पर दौड़ विकेट के बीच की तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। ग्राउंड फील्डिंग से ज्यादा मैदान पर जो कि इस वक्त इस मैच में 2 रन मैदान पर बनते हैं और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र इस मैच के दरमियान 14 पर। 6 छक्के लगाने वालों को 3000 रुपए का इनाम मिलेगा पूरे टूर्नामेंट में। परेश की तरफ से लाइन देखिए बहुत अच्छी, परेश पारसेकर जो कि उत्सो इस तरफ से पूरे एरिया में को जानते हैं। एक बड़ा शॉट निकला मैदान पर, उसके साथ एक वापसी, एक अच्छी बॉलिंग मैदान पर। देखिए 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने मैदान में। ये देखिए थोड़ी सी फुल टॉस है, ये वाइड है, ये बाहर निकली गेंद और देखिए अंपायर की तरफ पहले सरफराज ने देखा लेकिन अंपायर ने इशारा कर दिया, वो बिल्कुल वो बीमार नहीं था, गेंद थोड़ी सी नीचे जा रही थी इसलिए वाइड करार दे दिया। वहां पर 1 रन जो कि एक्स्ट्रास के रूप में मिल चुका है और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 15 रन मैदान पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। सरफराज जानते थे इनके पास वो प्रतिभा है कि किसी भी समय पर ये मैच में अंदर हो सकते हैं। और गति परिवर्तन, स्लिप के खिलाड़ी की तरफ गेंद निकले, हालांकि रन नहीं निकलेगा वहां पर। अच्छी फील्डिंग मैदान पर, 1 रन तो वहां पर रोका गया। देखिए 2 बड़ी टीमें हैं इसलिए शायद हम तो ये कहना पसंद करेंगे कि उनको पता है कि क्या हालात है, ये क्या करना पड़ेगा मैदान पर। 1 रन वहां पर रोका गया, सरफराज को रोकने का प्रयास बिल्कुल है और सरफराज जैसे खिलाड़ी को आप जब रोक पाते हैं ना तो टीम के तरफ आप बिल्कुल विश्वास की तरफ आप देख सकते हैं, विश्वास है आपकी टीम के ऊपर इस समय पर। तो उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। देर भी हो चुकी है इस समय पर, अगर टाइम बताया जाए तो आपको लगभग 5:08 हो चुके हैं। इसके बाद 2 मुकाबले बचे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे कि आप थोड़ा सा गेयर बदली जल्दी कीजिए। नया गेंदबाज इस्तेमाल किया जाएगा। समय इस वक्त ये बता रहा है कि 18 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता जिससे पीछे मैदान पर, क्योंकि 64 का पीछा करते हुए टोटल स्कोर 21 रन पर 1 विकेट नुकसान के बाद सरफराज और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। सामने से उसका खिलाड़ी जो कि दीपक स्ट्राइक पर मैदान पर। जास्त सवय नाही बोलायची, लगा नाका त्रास लगता। इस बीच मात्र वापस खेल चलेगा मैदान पर, गेंदबाजी में तब्दीली। बॉलर नेम साइश मैदान पर। ठीक है, साइश के पास सिर्फ एक मैं कहूंगा बिल्कुल विश्वास रहेगा। इस समय पर आप क्या कर पाते हैं गेंदबाजी में, क्या टीम चाहती है विकेट, क्या विकेट दे पाएंगे या फिर सरफराज और दीपक मिलकर इस मैच को आराम से समाप्त कर पाएंगे, ये बताने वाला समय, ये मौका मैदान पर चलता हुआ इस खेल में। ओ पॉइंट क्या ऊपर से हवा में रखा गेंद को, लेकिन शायद 2 रन वहां पर आराम से बनेगी। नहीं, तीसरे लेकर का और ये तीसरा रन, ये चौथा बिल्कुल बनेगा। 4 रन मैदान पर। मेरे अंदर से अभी भी जिससे पीछे। ओके मेरे 39 मेरे भाई। सरफराज 39 टू विन अभी तक है 17 गेंदों पर इस मैच में। बिल्कुल बड़ा मैच मैदान पर, बिल्कुल बड़ा मुकाबला ये। ओ इस बार देखिए ऑन साइड पर सीधे हाथ में
मिड विकेट सीमा रेखा पर एक अच्छा शॉट, लेकिन सीधे खिलाड़ी को ढूंढा वहां पर, सफलता मिली दूसरी। 2 विकेट नुकसान के बाद 64 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 25। मैदान पर देखिए, परेश सर ने कुछ अलग सा अंदाज रखा प्राइस में। 6 छक्के जिन्होंने अब तक खुद उन्होंने खर्च नहीं किए, ना उन्होंने खुद कभी छक्के लगाए 6, लेकिन सिर्फ 3000 रुपए के। सर जी प्राइस थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि सभी आपको इस एरिया में जानते हैं उजो इस नाम से। इस बार बढ़िया टाइमिंग, सीधा खेला लॉन्ग ऑन पर, एक निकला। देखिए सही सोच है ये, सरफराज को तो आप मौके दीजिए बल्लेबाजी करने के, इसके खिलाफ बैटिंग कर सकते सरफराज, ये सोच है इस वक्त। बिल्कुल विनोद विल्सन का ऐसा नहीं कि विनोद विल्सन बैटिंग कर नहीं सकते, इनके पास प्रतिभा है, काबिलियत है। गोवा पुलिस में कार्यरत खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं और बहुत से प्रतियोगिता में वन मैन आर्मी का काम इन्होंने बहुत बार किया। क्या उस तरह से माहौल रहेगा, लेकिन फिलहाल वहां पर साइश अच्छी बॉलिंग, एक बड़ा विकेट निकाल चुका है, एक बाउंड्री अभी तक खर्च भी कर, मतलब 5 रन खर्च किए 3 गेंदों पर, और यहां से अभी भी मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। रिवर्स किया अटेम्प्ट, बल्ले पर लगी गेंद, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। देखिए 30 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 34 रनों की अभी भी आवश्यकता मैदान पर जीत से पीछे। इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर का खेल बचा मैदान पर। सरफराज बिल्कुल अच्छी बैटिंग मैदान पर टीम के लिए, ऑन साइड पर सीधे हाथ में, काम बिल्कुल फंसा मैदान पर। एक खराब गेंद जिस पर कि बहुत बड़ा शॉट चाहिए था, आइन मौके पर गेंद धीमी आई, शॉट सिलेक्शन गलत हो गया और स्करले खिलाड़ी को ढूंढा, और ये सिर्फ ढूंढा नहीं, मैच में थोड़ी सी बिल्कुल मुश्किलात मैदान पर, क्योंकि इसके बाद बैटिंग है पीछे, लेकिन अभी भी चाहिए मात्र 34 रन की आवश्यकता मैदान में। रियाज खान बल्लेबाज पर, नए बल्लेबाज पर जो कि पहुंच चुका है। स्ट्राइक पर रियाज खान, जो कि इस वक्त विल्सन का साथ देने के लिए मैदान पर। 2 विकेट एक ही ओवर में। गति परिवर्तन, चेंज अप पेस किया, गेंद को हल्के हाथ से खेलेगा, और देखिए मौका है, सीधा निशाना, मामला ढूंढाई था मैदान पर। 1 रन निकला, 1 रन के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। 31 पहुंचा टीम का स्कोर, पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका, और अंतिम 12 गेंदों पर जिससे पीछे लगभग 16 रन प्रति ओवर, 33 रन चाहिए जिससे पीछे इस मैच में।
12 गेंदे। रियाज खान ऑन स्ट्राइक मैदान पर, बिल्कुल कद काठी बहुत बड़ी इनकी है। सिर्फ इनके कद काठी पर ये टाइमिंग के भी धनी है। काबिलियत बहुत है इनके पास मैदान में, कूट कूट कर भरी काबिलियत। लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, क्रिकेट में जिस दिन जो बल्लेबाज रियाज 33 टू विन है, 12 गेंदों पर 33 जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। देखिए आधा रन क्रिकेट में होता नहीं, इसलिए हमने 16 ओवर बताया आपको, प्रति ओवर 16.5 रन बनाने पड़ेंगे प्रति ओवर मैदान पर। ए बॉलर ने प्रणील हाँ, ये देखिए जिस रोज जिसकी किस्मत खराब हो ना, तो उस रोज इसके साथ ये होता है। ये अगर इनसे बात में अगर आप पूछेंगे ना ये फुल टॉस थी, तो ये कहेंगे भाई सोचा ही नहीं था फुल टॉस हो सकती है। अन्यथा अगर अगली बार ये मिलेगी ना, तो ये सीधी डायरेक्ट रोड पर जाकर गिरेगी, किसी भी बस की कांच नहीं टूटी जाएगी, सिर्फ वो बिल्कुल गेंद गुम हो जाएगी। काबिल इनके पास है, लेकिन किस्मत भी साथ देखिए बल्ले गेंदबाज की, बच गए वहां से। ये देखिए हवाई फायर सीधे खिलाड़ी के झोली में, कैच लो मैच लो और ये आउट। सफलता वहां पर, फुल टॉस गेंद चूकी और पिच गेंद बल्ले पर ऊपर टकरा गई और गेंद हवा में खड़ी होने के बाद सफलता मिली वहां पर। मैच वापस कब्जे में, 10 गेंदे और 33 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। लक्ष्य कितना दूर है, लक्ष्य इतना दूर है ना कि आपको अगर पहुंचना है तो एक ओवर में कम से कम 4 छक्के मारने पड़ेंगे। 3 तो पहले मारिए, चौथी की बात देखी जाएगी बात में। गति गति देखिए, बहुत तेज गेंद यासीन के लिए, बिल्कुल ढूंढते रह गए वहां पर, गेंद बहुत तेज निकली, विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और अभी भी 33 रन जिससे पीछे। मैच उतना आसान नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, ये कहानी कभी भी बदली जा सकती है। 1-2 छक्के अगर लग जाए ना तो वापस मोमेंटम प्राप्त हो सकता है और वहीं से ये मुकाबला बन सकता है मैदान पर। मिक्स टाइम है, ये खुद गेंदबाज वहां पर है और ये सफलता और एक मैदान में मिलती हुई। खिलाड़ी में पहुंच चुका है। देखिए क्या वहां पर दीपक का कैच सीधा हाथ में निकला, सरफराज का गेंद सीधे हाथ में निकली। 2 खिलाड़ी जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा, वो आज बहुत सस्ते में निकले, एक सरफराज छोड़कर। ओ खुद के निकला हेलीकॉप्टर, बिल्कुल बल्ला पहले बंद हो गया, इसलिए गेंद ने उतनी दूरी प्राप्त नहीं की, 1 रन वहां पर निकला। देखिए 2 विकेट निकलने के बाद मामला थोड़ा सा रुक गया मैदान में। 32 रन की आवश्यकता, विनोद विल्सन जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। क्या इस गेंद पर वो बड़ा शॉट लग, ये काफी देर के बाद उनको स्ट्राइक ही मिली नहीं है, क्या वो बड़ा शॉट लगा पाएंगे इस समय पर? चेंज ऑफ पेस लेकिन थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 31 रनों की अब आवश्यकता, अंतिम कुछ गेंदें बची इस ओवर के बाद। इस गेंद के बाद एक ओवर भी बचा है मैदान पर, मतलब अगर यहां पर एक शॉट बन पाता है तो उम्मीदें फिर से बिल्कुल चलेगी मैदान में कि मुकाबला बिल्कुल वापसी में हो सकता है मैदान पर। बिल्कुल खुद के निकाला, बल्ले पर लगी गेंद, लेग स्लिप में गेंद चली गई, 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा मैदान पर, क्योंकि इस समय पर 3 ही रन निकल चुके। 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर।
करेंगे तो बिल्कुल आपको पैसे 3000 नहीं मिलेंगे, लेकिन जीत मिल जाएगी मैदान पर। देखिए बिल्कुल ये डॉट टेकल तो विकेट आउट। चलो ये आउट हो गए। चलिए बल्लेबाज जल्दी पहुंचे। क्या हैट्रिक का मौका मिलेगा? 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट। क्या वहां पर कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, 2 गेंदों पर आनंद पाटिल को मिलती हुई 2 सफलताएं मैदान पर। वाइड बॉल है ये, वाइड बॉल मैदान पर। अब देखिए अब लक्ष्य बहुत दूर जा रहे हैं। यहां से आने वाली हर गेंद पर भी छक्का लगा ना, तब भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बड़ी टीम जो बहुत सस्ते में लौटी मैदान पर, लग रहा था इतने दिग्गज खिलाड़ी है, खासकर पहले जो कि बद्दी जो आज बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, कुछ हद तक सरफराज ने बैटिंग की, लेकिन उनका एक बेहतरीन कैच लपका। और दीपक लग रहा था कि बिल्कुल ये जल जाएंगे, शायद आज बिल्कुल दीपक कुछ उजाला कर पाएंगे, और उसी मौके पर दीपक ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को ढूंढा और वो आउट हो गए। उसके बाद और देखिए यहां से मैच समाप्त हो जाएगा। रजा भी आज बहुत बिल्कुल नाराज लौटे मैदान पर। फुल टॉस गेंद पर वो बड़ा, और विनोद विल्सन को ज्यादातर मौके नहीं मिले, लेकिन बहुत अच्छा कार्य मैदान पर। डॉट के साथ ये इनिंग समाप्त। इसके बाद का खेल कप्तान, चलिए जल्दी, कप्तान जल्दी पहुंचे टॉस के लिए।